اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں علی نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامک وظائف یوٹیوب چینل. اپنے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ میرے مسلمان بھائی بہن دوست دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جہاں پہ بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں. اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. اگر میرا کوئی بھائی بہن دوست کسی مشکل میں آ گیا ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرما دے. جو بھی میرا بھائی بہن کسی قرض میں ڈوب گیا ہے، قرض اتر نہیں رہا، اللہ اپنے خزانوں سے اس کو عطا کرے تاکہ یہ جو ایک قرض کی لعنت ہے یہ اتر جائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، ماں باپ سے دور چلی گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، اللہ ان کے دل میں ماں باپ کی عزت اور محبت عطا فرمائے. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں مل رہے، رشتے ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے رشتے عطا کر دے. جو میری بہنیں سسرال سے ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر بیٹھی ہیں، ان کے ماں باپ میں اتنی سخت نہیں کہ سسرال والوں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر سکے، یا جن کے خامن غلط راستے پہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بیویوں کی کوئی وقت نہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے. جو کسی غلط فہمی میں آ کے میاں بیوی ناراض ہو گئے ہیں، کوئی لڑائی زیادہ ہو چکی ہے، بات طلاق تک جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے. جب طلاق ہوتی ہے تو شاید عورت اور مرد کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن بچے کبھی سیٹل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان بہن بھائیوں کے دلوں میں یہ ڈال دے کہ طلاق حلال ضرور ہے لیکن اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. جو میرے بھائی بہن کسی سفر میں ہیں، سفر میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ رہی ہے، اللہ ان کا سفر آسان فرما دے. اور میں تو اپنے لیے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، کہ میرے اللہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب کرنا. جن کو عطا کیا ہے ان کو بار بار نصیب کر. جن کے پاس اس سفر کے لیے پیسے نہیں ہیں، اے میرے اللہ صرف ایک بار کوئی ایسا سبب بنا دے کہ مرنے سے پہلے یہ آنکھیں تیرے گھر کو دیکھ لیں. آمین ثم آمین. آج جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں، یہ محبت کا ایک بادشاہ عمل ہے، ایک ایسا عمل جس کی مثال نہیں ہے. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ یا ودودو، اللہ
ताला का एक सिफाती नाम जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। बहुत सारे आपने वजीफ़े इसके सुने होंगे कि ये भी होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक ऐसा अमल है कि अगर आप इसको करते हैं तो अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत का दीवाना करना चाहते हैं, कोई रूठ गया है, कोई भाग गया है, कोई नाराज़ हो गया है, आप चाहते हैं कि वो ख़ुद सुलह के लिए वापस आए, तो इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा दिन नहीं गुज़रेंगे कि वो इंसान जो आपसे हर वक्त लड़ता है, झगड़ता है, आपकी मोहब्बत में दीवाना नज़र आएगा आपको। जो रूठ गया है, जो नाराज़ है, सुलह के लिए राब्ता खुद ही कर लेगा। बस आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अमल इस तरह करना है कि सुबह नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वरना सुबह के टाइम ही इस अमल को आपने करना है। नमाज फ़जर के बाद ज़्यादा असर रखेगा ये अमल। दिन में एक बार करना है। आपने करना इस तरह है कि अपना नाम और अपनी वालदा का नाम के अदाद निकाल लेने हैं। उसके बाद जो मतलूब है, जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं, उसका नाम और उसकी वालदा के नाम के अदाद निकाल लेने हैं। जिन बहन भाइयों को अदाद निकालने नहीं आते, बहुत आसान तरीका है, प्ले स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे अदाद लिखें, सिर्फ खाली अदाद लिखेंगे, अदाद काउंटर लिख देंगे तो बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लें। उधर नाम लिखेंगे तो वो उसी वक्त तादाद बताता जाएगा। तो आप तादाद निकाल लें, अपना, अपनी वालदा का नाम, महबूब का नाम, महबूब की वालदा के नाम के अदाद निकाल लें। ना समझ आए तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी जानने वाले से पूछ के अदाद इकट्ठे कर लें। जितने तादाद बने सबको जमा कर लें। उसके बाद उतनी तादाद में अपने या वदूदो पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। पढ़ते वक्त बातचीत नहीं करनी और मुंह में कोई मीठी चीज़ रख लेनी है। पढ़ने के बाद आपका जो मुंह हो, जब पढ़ रहे हैं तो मतलूब की तरफ हो, मतलूब के घर की तरफ हो। जिधर आपको लगता है आइडिया लगा लें कि इस तरफ उसका घर है, तो उसके घर की तरफ मुँह करके आप बैठ जाएँ या खड़े होकर पढ़ना शुरू करें। लेकिन ये यकीन कर लें कि आपके मतलूब का घर इस तरफ है, आपका मुँह उस तरफ होना चाहिए। अगर आप नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद करते हैं, दुआ कर लेते हैं, तो जाए नमाज पर बैठे ही कर सकते हैं। बस आपने जाए नमाज को ना छेड़ें, ख़ुद को उस तरफ कर लें, आपका चेहरा उस तरफ हो जाए जिस तरफ उसका घर है। अगर वो पाकिस्तान में नहीं है या आपके शहर में नहीं है तो आप गूगल के थ्रू देख सकते हैं या अंदाज़ा लगा लें कि घर इस तरफ है। तो आपने अपने महबूब का तसव्वुर रखना है, कवि तसव्वुर, कि अगर आप आंखें बंद करें तो उसका चेहरा आपकी आंखों में आ जाए। अगर तसव्वुर नहीं हो रहा, ये इस चीज़ की निशानी नहीं होती कि इंसान को सच्ची मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो दिल में होती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया तसव्वुर नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो फिर अगर तस्वीर है तो वो रख लें, वरना कोशिश करें कि कवि तसव्वुर हो। बस पढ़ते वक्त कोई बातचीत, इधर उधर का ख्याल दिल में ना लाएं, दिल से पढ़ें और सच्चे यकीन के साथ पढ़ें। इस यकीन के साथ पढ़ें कि जो ये अमल कर रहे हैं हम, ये फ़ौरन उस पर असर करेगा। तो आपने उतनी तादाद के मुताबिक फिंगर टिप्स पे गिन लें, तस्बीह पे पढ़ लें, काउंटर पे पढ़ लें। गिनती पूरी करने के बाद उसकी तसव्वुर में उसके घर की तरफ मुँह करके दम कर दें। अगर वो घर में रहता है तो आप फिर जिस तरफ मर्ज़ी मुँह करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में नहीं रहता, कहीं आसपास है, दूर है, तो फिर आपने उस रुख को देखकर पढ़ना है। 11 दिन इस अमल को आपने कर लेना है। इंशाअल्लाह 11 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ, आप इस अमल से अभी सेटिस्फाई नहीं हुए, अभी कमी है, तो इस अमल को 21 दिन कर लें या 40 दिन कर लें। इंशाअल्लाह जिसके लिए करेंगे वो आपकी मोहब्बत में दीवाना होता जाएगा। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए और काम नेक होना चाहिए।